Welcome children. In last class we have discussed about DNA replication. So that is how the DNA produces its exact replica. Today we will be discussing introductory part of the transcription. Okay. So today I will be telling you what is transcription and what is transcription unit. But before that I would like to tell you what is central dogma. Okay, central dogma. You know that children, in according to Mendel, the characters are regulated by the genes, and the genes are nothing but the segment of DNA. It is the segment of DNA. Then how these genes are expressed as character, how the DNA, the segment of DNA are expressed as character. So that is according to, so that's why the central dogma was proposed by Francis Crick. It was proposed by Francis Crick. According to the central dogma, what does it say? The flow of genetic information, according to central dogma, the flow of genetic information is unidirectional. Okay, so it is unidirectional. That means what? How it is unidirectional? From DNA to RNA and from RNA to protein. So this unidirectional flow of genetic information is called central dogma. Okay, so let me show you here. This is DNA. So this is what is called central dogma. DNA forms RNA, then RNA forms protein. Okay, so the DNA transcribes into RNA. The formation of RNA on DNA is known as transcription. This is transcription, and the RNA synthesizes the protein. Okay, the synthesis of protein on the RNA is called translation. But never it will take place from protein to RNA or RNA to DNA. This was according to Francis Crick. And one more thing that we have already discussed, that DNA can replicate. So this is replication. Okay. Also this is the pathway of central dogma. Okay. Now later on, while studies were made in retroviruses, okay, you know what are retroviruses? The retroviruses are the animal viruses which contains the RNA as their genetic material. So when studies were made in retroviruses by Temin and Baltimore, so I think it is clear now. According to Temin and Baltimore,
Emin and Baltimore. According to them, in retroviruses, the flow of genetic information can take place in reverse direction. How? DNA, RNA and protein. Okay. So now in retroviruses, this is in case of retroviruses, RNA is the genetic material, okay, but RNA cannot replicate directly. So if it has to make its more copies, number of copies, if it has to produce multiple copies, then RNA has to convert into DNA by reverse transcription. Reverse transcription. Okay. So by reverse transcription, this DNA to RNA is a transcription. Okay. Transcription. But reverse one is reverse transcription. Then the DNA can replicate and it will form its multiple copies. Again DNA to RNA, then to protein. So this is the flow of genetic information in case of retroviruses, where RNA is the genetic material. Okay. Now in both the cases, it is clear that the flow of genetic information is always from DNA to RNA, then RNA to protein. So the first part, that is replication of DNA, we have already finished. So today we will be discussing about transcription. Transcription क्या होता है, DNA से RNA कैसे बनता है. Okay. So here children, one thing always remember, while discussing DNA replication, I have told you that the two strands of DNA get separated and each of them form the complementary strand. That means both the DNA strand act as template strand. Clear? So यहाँ जब DNA replication हो रहा है, this is in case of DNA replication. So during DNA replication, both the strand act as template. Template क्या है? The strand upon which another DNA or RNA strand can be synthesized is known as template strand. So यहाँ आपका दोनों strand template की तरह act करते हैं. But in case of replication, जब DNA से RNA बनता है, so suppose say this is DNA, the two strands of DNA are there, DNA, but out of these two strands, only one strand can synthesize the RNA. So here, out of these two strands, only one strand can synthesize its complementary strand. Other strand cannot synthesize the RNA, and that's why RNA is single stranded, and this RNA cannot form bond with this DNA. So this is DNA strand, ये DNA strand है, and this is RNA. RNA DNA में कभी बॉन्डिंग नहीं होता, इसलिए ये कभी ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनेगा. Okay, so this is the RNA strand which is synthesized on one of the DNA strand. दो DNA strand में से एक ही DNA strand के ऊपर synthesize होता है. Now the question is that why both the strand of DNA cannot synthesize RNA? If both of them will synthesize RNA, then what will be the problem? Problem क्या होगा?
ठीक है, तो चलिए देखते हैं why both the strand of DNA cannot transcribe RNA। ठीक है, सो इसका दो रीजन है बच्चों, देयर आर टू रीजंस। ओके, द फर्स्ट रीजन इज दैट इफ बोथ द स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अगर टेम्पलेट की तरह काम करेंगे तो क्या होगा, द both the strand will form the RNA, दोनों स्ट्रैंड RNA बनाएंगे। ठीक है, एंड ये क्या हो रहा है आपका, सपोज दिस इज डीएनए। ठीक है, तो अगर दोनों स्ट्रैंड बनाएंगे आरएनए तो इसमें क्या होगा, दो आरएनए बनेगा, सो 2 आरएनए मॉलिक्यूल। ओके, सो ये जो 2 आरएनए मॉलिक्यूल होंगे, ये 2 आरएनए मॉलिक्यूल क्या होगा इसमें, ये दोनों आरएनए मॉलिक्यूल का जो सीक्वेंस होगा, इसका जो सीक्वेंस होगा, दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, ये दोनों में अलग अलग होगा। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विल बी डिफरेंट इन बोथ द दैट इज 2 टाइप्स ऑफ आरएनए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 तरह के आरएनए बन रहे हैं। सो 2 तरह के आरएनए अभी क्या करेंगे, 2 तरह के प्रोटीन बनाएंगे, दे विल फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ओके, सो अगर एक जीन 2 डिफरेंट प्रोटीन के लिए कोड करेगा तब क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रॉब्लम, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, दैट विल बिकम वेरी, आई मीन व्हाट वी कैन से, इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, क्योंकि हम पहले से पढ़ चुके हैं कि 1 जीन 1 कैरेक्टर, लेकिन अगर दोनों स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रहे हैं आरएनए तो 2 आरएनए हो रहे हैं, सो 2 प्रोटीन, सो 2 कैरेक्टर हो रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस को कैटालाइज करने के लिए एक एंजाइम की जगह पर 2 एंजाइम बन जाएंगे, जहां आपको एक एंजाइम चाहिए वहां 2 डिफरेंट एंजाइम बन जाएंगे, तो सिस्टम बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, सो लेट मी राइट डाउन, you also note down children, if both the DNA strand will synthesize RNA, then 2 different types of RNA will be produced, and these 2 different types of RNA will code for, will synthesize 2 different polypeptide। ओके, सो अभी 2 तरह के पॉलीपेप्टाइड हो गए, सो therefore one segment of, therefore
one segment of DNA. Segment of DNA means what? Gene coding for two different polypeptide will complicate the transfer of genetic information machinery. ओके, सो दिस इज वन रीजन. अगर दो स्ट्रैंड दो डिफरेंट तरह का आरएनए बनाएंगे तो दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनेंगे, जबकि हमको एक जीन एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, हम ये पढ़े हैं. तो वहां पर अगर दो कैरेक्टर दो प्रोटीन आएंगे तो ये जो मशीनरी है ट्रांसफर का जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, दैट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड. ओके, नाउ द सेकेंड रीजन. सेकेंड रीजन क्या हो सकता है? देखिए, सेकेंड रीजन इज दैट, ये मान लीजिए दो डीएनए स्ट्रैंड है. दीज टू डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर. तो इससे जो डीएनए आई मीन आरएनए बनेंगे, दे विल आल्सो बी कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर. आरएनए जो बनेंगे वो भी कॉम्प्लीमेंटरी होंगे and they will form double stranded RNA. Double stranded RNA. ठीक है, अगर RNA डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा तो कैन इट फॉर्म द प्रोटीन? सो इट कैन नॉट ट्रांसलेट प्रोटीन. ये प्रोटीन को ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा. इसका मतलब क्या है? द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन, जो कि हमारा सेंट्रल डॉगमा का इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफर का जो दैट इज द स्पेसिफिक पाथवे, उसको फॉलो नहीं करेगा. ठीक है, सो व्हाट इज द सेकेंड रीजन? राइट डाउन चिल्ड्रन. इफ the two strands, two complementary strands of DNA will form their respective RNA, then the two RNA formed will be complementary to each other and form double stranded RNA, which cannot translate प्रोटीन, जो कि प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं हो सकता. So this is another reason why both the strand of DNA cannot transcribe the RNA. Okay, so from the examination point of view, these are the this is a very important question, and these two reasons only you have to write down. Okay, now let us discuss the transcription unit. What is transcription unit?
clean it clearly. Now the next thing is ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. अभी डीएनए का कौन सा हिस्सा ट्रांसक्रिप्शन करेगा? हमने बताया आपको आउट ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ओनली वन स्ट्रैंड कैन ट्रांसक्राइब. देन वी शुड नो व्हिच स्ट्रैंड एंड व्हिच पोर्शन एंड व्हाट मशीनरी शुड बी देयर for transcription, and that unit which can transcribe a RNA is called transcription unit. So now transcription unit, sorry, transcription so don't confuse children. Transcription unit means it is not RNA. Transcription unit means it is DNA only. Okay, so a transcription unit consists of three important things. What are they? A promoter, then the structural genes, and third one is the terminator, a terminator. ठीक है. सो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ये तीन चीज होता है, एंड दिस इज द मशीनरी. दे टुगेदर फॉर्म ए ट्रांसक्राइबिंग यूनिट and they are located in the DNA itself. ये DNA का पार्ट है जो कि RNA बनाता है. ठीक है. So you know that in a DNA strand the polarity is that if one is in like suppose this is DNA, this is double stranded DNA. Okay, so if one is in 3 prime to 5 prime direction, then other is in 5 prime to 3 prime direction. Okay, so here in a transcription unit जब DNA ट्रांसक्राइब करने वाला होता है तब इसमें एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा. तो कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा? दिस स्ट्रैंड विल एक्ट एज टेम्पलेट, and this strand is known as coding strand. Okay children, so एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में डीएनए का जो दो स्ट्रैंड होता है उसमें एक ही टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, and that can synthesize the RNA. The other strand which is coding strand cannot code for RNA. बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोडिंग स्ट्रैंड मीन्स ये यही आरएनए बनाता होगा, यही आरएनए को कोड करता होगा. नहीं, कोडिंग स्ट्रैंड उसको क्यों कहा जाता है मैं आपको बताने वाली हूँ. कोडिंग स्ट्रैंड विल नॉट कोड फॉर एनीथिंग. फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी. सो याद रखो बच्चों, द स्ट्रैंड, द डीएनए स्ट्रैंड व्हिच इज इन द 3 प्राइम टू 5 prime direction is template strand, and this strand can only synthesize the RNA, but the other strand that is in 5 prime to 3 prime direction cannot synthesize the RNA, and that is called coding strand. Okay, now this template strand will synthesize the RNA which will be complementary to this strand, template strand. टेम्पलेट स्ट्रैंड जो आरएनए बनाएगा, मान लो ये आरएनए बनाया, ठीक है, इससे ये आरएनए बना, ये आरएनए क्या होगा, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है, और डीएनए का ये स्ट्रैंड इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है. डीएनए का जो दूसरा स्ट्रैंड है वो पहले से कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के साथ. अभी जो आरएनए नया बनेगा इस स्ट्रैंड के ऊपर वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा इसके साथ. तो ये दोनों सेम हुए कि नहीं, ये दोनों सेम हुए.
लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है क्योंकि ये आरएनए मॉलिक्यूल है, ये आरएनए है और ये डीएनए है, और हम जानते हैं कि आरएनए में यूरासिल होता है, आरएनए में यूरासिल होता है, डीएनए में थायमीन होता है। इसीलिए ये दोनों बराबर रहेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसका जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का वही सीक्वेंस यहाँ पर रहेगा, सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि T के जगह पर यहाँ U रहेगा। ओके, सो द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ, note down children, the nucleotide sequence of RNA transcribed on the template strand is similar to the coding strand except that U is present in place of T। समझ में आया? सो ये RNA और DNA का स्ट्रैंड सेम रहेगा, लेकिन U के T के जगह पर U रहेगा। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। ओके, तो ये हो गया आपका कोडिंग स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड। सो फिर से बता रही हूँ, व्हाट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड? टेम्पलेट स्ट्रैंड इज द स्ट्रैंड दैट एक्ट एज टेम्पलेट फॉर ट्रांसक्राइबिंग द RNA and that is in 3' to 5' direction. And what is coding strand? It is the strand of DNA whose sequence is similar to the RNA synthesized from the template strand, only thymine is present in place of uracil, and this strand is always in 5' to 3' direction. ठीक है? So I think template strand and coding strands are clear to you. Now let us discuss the different parts जो हमने आपको बताया, promoter, structural genes and terminators, ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है? Okay, in this diagram only I will show you. Okay, so this is promoter. I will tell you what is promoter, don't worry. ये मिटा देती हूँ मैं. So this is promoter and this is terminator, and here in between the promoter and the terminator the structural genes are present. Structural genes are present. And remember children, in case of prokaryote, more than one structural genes are present. Okay. And but in case of eukaryote, only one gene is present. Okay. Now what is this promoter? ये promoter होता क्या है? This promoter is the sequence of DNA that serve as binding site for the RNA polymerase. अभी देखो बच्चों, DNA से DNA कौन सिंथेसाइज कर रहा था? DNA पॉलीमरेज। अभी DNA से RNA कौन सिंथेसाइज करेगा? DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। So this is the site, or you can say the sequence of DNA to which the RNA polymerase binds here. So promoter क्या है? The RNA DNA dependent RNA polymerase binds here, binds at a promoter. promoter में ये bind होता है, ठीक है। अभी promoter हमको अभी कैसे पता चलेगा कि promoter इस तरफ है या इस तरफ है? देखो बच्चों, अभी आया कोडिंग स्ट्रैंड का इंपॉर्टेंस, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड का
अपस्ट्रीम कौन सा है? दिस इज अपस्ट्रीम। कोडिंग स्ट्रैंड का डाउनस्ट्रीम, दिस इज डाउनस्ट्रीम। ओके, सो कोडिंग स्ट्रैंड का जो 5 प्राइम एंड होता है, 5 प्राइम एंड, कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड की तरफ होता है प्रोमोटर। सो है ना ये इंपॉर्टेंट, कोडिंग स्ट्रैंड का इंपॉर्टेंस है कि नहीं, टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ प्रोमोटर। ठीक उसी तरह टर्मिनेटर, टर्मिनेटर का काम क्या है? यहां पर क्या होता है? टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन takes place। ओके, सो ये क्या है बच्चों आपका? सॉरी, ये हमने आपको हाँ सही बताया। तो ये देखो बच्चों, ये है टर्मिनेटर जहां पर ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है। ठीक है, तो ये टर्मिनेटर साइट कहां पर है? आपको अगर लोकेशन पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? इट इज टुवर्ड्स 3 prime end of the coding strand, 3 prime end of the coding strand downstream। ठीक है, सो प्रोमोटर कहाँ है? कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड में। तो कोडिंग स्ट्रैंड इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ द प्रोमोटर एंड द टर्मिनेटर। ओके, सो प्रोमोटर क्या है? जो कि कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड की तरफ रहेगा, एंड टर्मिनेटर क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड की तरफ रहेगा। और ये दोनों के बीच रहेगा स्ट्रक्चरल जीन, जो कि एक एक पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करेंगे। ओके, so this structure, that is the whole structure is known as transcription unit, and this transcription unit is very very important from examination point of view। okay, so अभी हम देखेंगे excuse me, so यहाँ पर हम देखेंगे ये जो स्ट्रक्चरल जीन के बारे में हमने बताया। so what is this structural genes? प्रोमोटर तो क्लियर हो गया, टर्मिनेटर भी क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन? जीन और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बीच में क्या रिलेशन है? ओके, सो ए स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो स्ट्रक्चरल जीन 2 तरह के हो सकते हैं। एक है मोनोसिस्ट्रोनिक, दूसरा है पॉलीसिस्ट्रोनिक। ओके, सो मैं यहाँ पर आपको इफ इट इज क्लियर टू यू देन आई विल इरेज दिस। मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि आपको मैं अभी पॉलीसिस्ट्रोनिक एंड मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन के बारे में बताऊंगी। सो जस्ट रिमेंबर दैट द स्ट्रक्चरल जीन इज लोकेटेड between the promoter and the terminator of the transcription unit। okay, now the next topic is transcription unit and the gene। ये दोनों में क्या रिलेशन है? ओके, सो सबसे पहले ये जो हमने पॉलीसिस्टोनिक मोनोसिस्टोनिक बताया, उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि द जीन इज दैट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। द जीन इज द functional unit of inheritance। okay, so the DNA sequence coding for the RNA is also defined as gene। जो पार्ट आपका जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमने बताया उसको भी, उसमें जो that portion which can synthesize RNA
is also a gene. Okay, तो अभी हम एक टर्म पढ़ेंगे that is known as cistron. Very very important children. What is cistron? Cistron is the segment of DNA coding for the polypeptide. It is the segment of DNA coding for a polypeptide. ठीक है, तो देखो बच्चों, मान लीजिए इतना बड़ा डीएनए है, ये पूरा डीएनए कभी पॉलीपेप्टाइड नहीं बनाता। मान लीजिए इतना बनाएगा, फिर इतना नहीं बनाएगा, ये पोर्शन नहीं बनाएगा, ये पोर्शन नहीं बनाएगा, फिर ये बनाएगा। सो इसमें हम सिस्ट्रॉन किसको बोलेंगे? दिस पोर्शन विल बी कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। इसको हम सिस्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो द फंक्शनल यूनिट or the segment of DNA that will code for a polypeptide is called cistron. Now basing on the functional segment of DNA, the that is, you can say, the transcription unit is of two types. So types of transcription unit. One is monocistronic and second is polycistronic. Okay, so what is monocistronic? Monocistronic means that is presence of only one structural जीन, एक ही स्ट्रक्चरल जीन रहेगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। सो ये देखो, ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यहाँ रहा प्रोमोटर, यहाँ रहा टर्मिनेटर, तो यहाँ पर आपका एक ही जीन रहेगा। सो द होल सेगमेंट विल एक्ट एज ए सिंगल जीन। और इसमें ये किस में होता है? दिस इज इन केस ऑफ यूकैरियोट। ओके, नाउ पॉलीसिस्टर्निक मीन्स, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ मैं, पॉलीसिस्टर्निक transcription unit means more than one structural genes are present. So presence of more than one structural genes, and this is seen in case of prokaryotes. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये प्रोमोटर है, ये टर्मिनेटर है, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन होंगे। ये एक प्रोटीन बनाएगा, ये एक प्रोटीन बनाएगा, ये एक प्रोटीन बनाएगा। सो इन दिस वे, since they are able to produce more than one type of polypeptide, so it is called polycistronic. Okay, further one more thing we will discuss here, that in eukaryote the single gene is present, लेकिन हम पॉलीसिस्टर्निक में क्या पढ़ रहे हैं? more than one genes are present। ऐसा क्यों है? इसका स्ट्रक्चरल जीन और इसका स्ट्रक्चरल जीन्स में क्या डिफरेंस है? लेट अस सी। Just a minute. Now the structural gene in यूकैरियोट, अभी यूकैरियोट में स्ट्रक्चरल जीन के बारे में हम पढ़ेंगे। द स्ट्रक्चरल जीन कितना होता है?
एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ओनली वन स्ट्रक्चरल जीन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट, बट प्रोकैरियोट में मोर देन वन जीन कैन बी लोकेटेड। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यूकैरियोट का जो स्ट्रक्चरल जीन होता है, इट्स स्ट्रक्चर, इट हैज both coding and non-coding sequence. So the structural gene of eukaryote has two parts, that is axons and second one is introns. Very important, children. So what are axons? The axons are the coding sequences which can code for RNA. ठीक है? And what are introns? Introns are the non-coding sequences, which do not code for it will not code for any polypeptide. Okay, do not code for, this is not RNA, for protein, for protein. Okay, तो बच्चों देखो ये जो एक्सॉन इंट्रॉन है, सपोज से दिस इज द डीएनए, ये डीएनए अभी ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, सपोज से ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसने एक आरएनए बनाया, ठीक है, जिसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया। अभी ये जो आरएनए बनाया बच्चों, ये आरएनए सीधा प्रोटीन नहीं बना सकता, ठीक है, इट कैन नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन, क्योंकि इसके बीच बीच में क्या है, देखो यहाँ बीच में इंट्रॉन, इंट्रॉन को मैं क्या लिख रही हूँ, इंट्रॉन को बॉक्स कर रही हूँ, दिस शेडेड वन, देन एक्सॉन, देन अगेन इंट्रॉन, तो बीच बीच में इंट्रॉन है, यानी नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, ये प्रोटीन को कोड नहीं कर सकता। तो फिर कैसे होगा, क्या टुकड़ा टुकड़ा होगा? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। सो ये जब प्रोसेसिंग होता है, यूकैरियोट में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद इसको मैच्योर होने में टाइम लगता है। मैच्योर होने में यानी ये जो इंट्रॉन है, आई जिसको मैंने लिखा, और ई मीन्स एक्सॉन, एक्सॉन रहेगा, क्योंकि हमको प्रोटीन चाहिए, एक कंटिन्यूअस प्रोटीन चेन चाहिए। तो अगर ऐसा रहेगा तो कंटिन्यूअस प्रोटीन चेन कभी नहीं बनेगा, क्योंकि बीच बीच में इंट्रॉन है, इंट्रॉन को रिमूव करना है। सो इट अंडरगोज प्रोसेसिंग ड्यूरिंग व्हिच इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, और हमारा कितना एक्सॉन है, 1 2 3, अभी इंट्रॉन को काट दो, बस ये हो गया एक्सॉन, सिर्फ एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन, एंड नाउ इट कैन सिंथेसाइज प्रोटीन, अभी ये प्रोटीन बना सकता है। सो दिस इज मैच्योर आरएनए, ठीक है। सो मैच्योर आरएनए में इंट्रॉन नहीं होता, ठीक है, इतना याद रखो बच्चों। मैच्योर आरएनए जो होता है, जब आरएनए इनिशियली फॉर्म होता है डीएनए से, उसमें बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट, बट जब ये प्रोसेसिंग होता है, मैच्योर आरएनए होता है, तब उसमें इंट्रॉन नहीं होते। So the introns are, so they are absent in mature RNA. Okay, so these are the introductory part of transcription। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म जानने से पहले आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है जानना जरूरी है, क्योंकि हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में डिफरेंटली पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, इसीलिए दोनों का
स्ट्रक्चरल जीन्स भी जानना जरूरी है। बट बच्चों याद रखो, प्रोकैरियोट में ऐसे एक्सॉन इंट्रॉन नहीं होता, उसमें इंट्रॉन ही नहीं होता, ठीक है, उसमें इंट्रॉन नहीं होता, इसीलिए उसका जो आरएनए बनता है उसका प्रोसेसिंग की कोई जरूरत नहीं होती, इसीलिए वो छोटा छोटा होता है और more than one genes are present in the transcription unit. So for today this much only. Thank you very much.